So कोई डाउट है तो पूछिए. Any doubt? If you have any doubt in block 1 or 2, we can discuss. Otherwise, block 3, right? So right now, I'll share the screen. Is there any doubt? Hello, hello. Yes. आपका नाम क्या है? मैथ. You can write in the group so that other people can join. Right. Okay. So we start now. Right. If there is no doubt, then we can discuss few things. Right. So as you know that, so unit block 3, unit 1, right? Component of organizational development process, right? So there are various components, right? We need to study in the organization development. So organization development is a continuous process, right? Continuous process, right? And the process, if you talk about the process of development, so process of development start from the need identification, the problem identification in the organizations, right? That is where you have to go, get to know. Development is required when you will find out if your organization is doing well also, अच्छा कर रहा है, फिर भी आपको डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूअसली डे बाय डे, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा. ठीक है, सो यू कैन वर्क ऑन दिस. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, राइट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. So organizational development is focusing on the change, right, and changing the people different mindset, attitudes, or other related aspect of the organizations, right. So those things are changing. So first thing is initial diagnose. ठीक है, आपको पहला क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशंस में डायग्नोस करना है. डायग्नोस मीन्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स. ठीक है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं करेंटली, वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज प्रॉब्लम. So this is major important aspect in organizations development, right. So where you identify the various problems in the organizations. ठीक है, तो डायग्नोसिस वेरी सिस्टमेटिक, एंड यू नीड टू जस्टिफाई वेदर, फॉर एग्जांपल, कहीं पे आपके ऑर्गेनाइजेशंस में टाइम पे काम नहीं हो रहा है, वेस्टेज हो रही है, एब्सेंटिज्म है, या कोऑर्डिनेशन नहीं है, पीपल आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव. ठीक है, जो टारगेट बनाया वो टारगेट हम अचीव नहीं कर रहे, समवेयर वी आर फेलिंग. ठीक है, तो देन वी नीड टू एनालाइज वेयर द प्रॉब्लम. तो जनरली प्रॉब्लम जो मेजर होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, एक तो लीडरशिप चैलेंजेस बहुत बड़ी रहती है ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड चैलेंज इज द टीम बिल्डिंग. टीम में काम नहीं करते हैं लोग, पीपल आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव, पीपल आर नॉट एनफ मोटिवेटेड. ठीक है, तो मोटिवेटेड क्यों नहीं है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट अप्रोप्रिएट, दीज आर द. लेकिन बेसिक थिंग्स यू विल फाइंड आउट इफ यू गो इनटू द रूट. देयर इज अ लीडरशिप problem, then there will be a communications, right, communication, attitudes, okay, and cultural. ये three major things is important for any organizations if you are looking into the problem in the organization. Apart from other things like policy, structure, design of the work, right, delegating of the task, and the structure of the task, right, whether the design is there or not. So these things can be the additional aspect. Are you getting my point? So these are the things in diagnosis part. Then data collection. When you go for diagnosis, you will collect the data. The different data are available in different set of time. So you can collect the data.
And data, when you collect the data, then there will be a feedback. Okay, data feedback and confrontations. So confrontations is basically to justify the things. You need to analyze and data feedback and findings and actual में problem है कि नहीं. ठीक है. Then after that you have to select and design the intervention. ठीक है. तो डिजाइन करने के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए अलग से हम ट्रेनिंग कराएंगे, जो पहला है उसको पहले कराएंगे. ठीक है. अगर मतलब स्किल नहीं है एम्प्लॉय के अंदर तो स्किल्स पे फोकस करेंगे. ठीक है. टेक्नोलॉजी नहीं है तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कराएंगे, कम्युनिकेशन, तो जो भी आइडेंटिफाई करेंगे उसी हिसाब से वी नीड टू डेवलप टेक्नो स्ट्रक्चरल अप्रोच. ठीक है. तो टेक्नोलॉजी, हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी नीड टू डिराइव द इंटरवेंशन सो दैट, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ ही एसिमुलेट करके काम करना होता है. ठीक है. देन प्रोसेस कंसल्टेशंस. ठीक है. प्रोसेस कंसल्टेशंस मीन्स देयर आर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस, यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू थर्ड पार्टी जो होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनके थ्रू प्रोसेस कंसल्टेशंस टाइम टू टाइम यू हैव टू डिस्कस विथ योर कमिटी मेंबर्स और कमिटी यू कैन डू. देन टीम बिल्डिंग मैंने कहा सबसे बड़ी. देन थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस. ठीक है. प्रोसेस कंसल्टेशंस अगर आप बात करो यहाँ पे, mainly enhanced these process in order to make the faster and more effective. ठीक है. And the process may be related to communication, interpersonal relationship, problem solving, and decision making. Those are the things. Then third party interview, that's to survey feedback. Feedback mechanism should be there each and every area aspects. So we try to take the feedback. Every events, every activities you are conducting, take the feedbacks, then try to improve in the next time. Okay. Then these are the techniques. Now implementations. One, you design the training program, क्योंकि लोगों को ही चेंज करना है, बिहेवियर चेंज करना है, और कोई नहीं है. People need to. First of all, you have to check the leadership policy and everything. Then you have to go for a implementation. So implementations is basically the people in different training, empowerment, change with their mindset. तो वो चीजें आपको करना है. ठीक है. Then action planning and problem solving. Action planning is basically talking the क्या क्या आप एक्शन, फर्दर एक्शन एंड उसको सॉल्व करना है अगर प्रॉब्लम है. ठीक है. तो सबसे बड़ी जो बात हुई है टीम बिल्डिंग. टीम बिल्डिंग के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज है, इंडोर आउटडोर. आप लोगों को लेके जा सकते हो और उनको ट्रेन करा सकते हो. देन इंटर ग्रुप डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है. सेम ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर वर्किंग, है ना. And intergroup development means within the organization, intra-group development and intergroup. Intergroup is a department, one department to another department. क्या है, वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर. तो इंटर ग्रुप डेवलपमेंट अगर होगा, साथ में मिलके काम करेंगे तो बढ़िया होगा. देन इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंट के बाद हम उसका इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप करेंगे. So these are the aspect in components which is talking about the body interventions, organization development. Then diagnostics and system and sub unit and process. तो डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे ना. डायग्नोसिस इज बेसिकली you need to analyze what which are the things is required. You need a deeper level of understanding and also organization data. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की डेटा होता है, उस डेटा को एनालिसिस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल एब्सेंटिज्म है, परफॉर्मेंस क्या रही हर इंडिविजुअल की, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रख सकते हो. ठीक है. तो इस तरह की डेटा को लेके आप एनालाइज कर सकते हो. देन फेजेस ऑफ डायग्नोस, पहले एंट्री देखो, एंट्री द डेटा कलेक्शन. और डेटा आजकल एचआर एनालिटिक्स है, बहुत बड़ी डेटा है, तो वो डेटा बता देगा कौन सी एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है. सो एवरी डेटा विल, तो डेटा एनालिसिस से भी बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाएगा. ठीक है. देन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस टू बी डायग्नोस, लाइक कम्युनिकेशन पैटर्न, स्टाइल फ्लो क्या है, गोल सेटिंग क्या है, ये सब चीजें आप देखते हो. डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्शन प्लानिंग क्या है ना. सो these aspects you can discuss, right? And whether the learning organizations are there.
then there are various models are available, okay, to diagnose the things, right, and to solve the problem. जैसे ये 6 box model given by Marvin, ठीक है. हाँ, तो 6 box मॉडल क्या है ना, पर्पस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रिलेशनशिप, रिवार्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप मैंने बताया था, हेल्पफुल मैकेनिज्म. तो ये 6 एस्पेक्ट्स को अगर हम ध्यान दें, काम करें, तो ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजेस ला सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं. The 6 box model will help you to this. Then other model also there. Here also including other models also. You can go through this unit 3. बहुत सारे other models are also there. ठीक है. Preparing the before implementing the changes, like आप इसके अंदर whole things like ये थोड़ा सा रिपीटेशन है. चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज. जो चेंज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वर्क एनवायरनमेंट कर रहे हैं, सबसे बड़ी है चेंज विद रिगार्ड्स टू पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज इम्पोर्टेंट. चेंज हमें वही करना है, और दैट विल द होल ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू बी अफेक्टेड बाय द चेंज. तो चेंज रिजल्ट फ्रॉम द pressure of force and both inside and outside of the organization. तो इम्पोर्टेंट है चेंज के लिए ये सब करना है. एंड प्रिपरेशन बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द चेंज, क्या चेंज करना है ना, प्लानिंग करनी है. एंश्योर द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज इंटरेस्ट शुड बी कंसिडर एंड फोकस द ग्रुप डायनामिक्स, राइट. Group dynamics, systematic implementation, motivations, and highlights the benefit of change, and training and development activities, understanding the purpose and the risks benefit involved in communicating the same to the employee. Similarly, anticipating possible reasons for resisting change and making sustainable development. Then constantly focusing on the process of change, right? And this is the preparation. This is self-explanatory. You can go through it, study. Interact with the leader and supervision. तो लीडरशिप मैंने जो कहा ना, लीडरशिप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है चेंज प्रोसेस में. लीडर की कम्युनिकेशन क्या है, लीडरशिप हर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी चेंज करो, लीडर अगर आपकी सही है तो ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को सही है. अब सही लीडरशिप क्या है, सही लीडरशिप मतलब जो प्रिंसिपल पे काम करे, जो एक मॉडल पे काम करे. तो बहुत सारे लीडरशिप थ्योरीज हैं जिसको आप पढ़ने की जरूरत है. जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, उस मॉडल पे अगर आप काम करोगे तो सही इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. सिमिलरली मैनेजरियल ग्रिड, बिहेवियरल थ्योरी, वो सही है, उसको अगर फॉलो करोगे तो अच्छा होगा. सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, वो अच्छा है. रॉबर्ट हाउस लीडरशिप, पाथ गोल थ्योरी, वो भी अच्छा है. ठीक है ना. तो वो सारे थ्योरी को अगर इम्प्लीमेंट करोगे, कोई भी थ्योरी ले लो विच इज हेल्पफुल, ठीक है, टू डेवलपमेंट द पीपल एंड चेंजेस, ब्रिंग द चेंज. तो लीडरशिप चेंजेस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. देन रेजिस्टेंस टू चेंज, जो चेंज कहाँ किसको कर रहे हैं ना, लोगों को, लोगों की रेजिस्टेंस होगा ही, चेंज प्रोसेस में आएगा ही. तो दैट इज वेरी वेरी अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. जो चेंज हम कर रहे हैं उसमें ये सारे दिक्कतें आएंगी. तो चेंज क्या है ना, इकोनॉमिक फैक्टर. बहुत सारे लोगों की अगर चेंज हुआ तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, हमारे जॉब चला गया. ठीक है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. ठीक है. बहुत सारे साइकोलॉजिकल, फियर ऑफ अननोन है ना, टॉलरेंस. तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर है. सोशल फैक्टर इसी तरह, जे मेरी रिसोर्सेस छीन जाएगा, है ना. ग्रुप रेजिस्टेंस आल्सो देयर, जे बहुत सारे लोग चेंज होना चाहते हैं, ग्रुप प्रेशर्स होती है. एक दूसरे को कहेंगे तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ठीक है, करने की जरूरत नहीं. नाउ स्ट्रैटेजी फॉर ए चेंज, क्या करना है ना, सेपिंग फ्यूचर. ठीक है. स्ट्रैटेजी क्या है ना, वही है, एजुकेट करना है, पार्टिसिपेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है.
इसीलिए लोगों की कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करना है, फ्यूचर गोल बनानी है, देन मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस, थोड़ा बहुत चेंज करना, एंड चेंजिंग द वर्क प्रोसेस। वर्क प्रोसेस मीन दैट इज टॉकिंग अबाउट द जॉब डिजाइन। आपको जॉब डिजाइन के अंदर जॉब रोटेशंस हैं, जॉब एनलार्जमेंट है, जॉब एनरिचमेंट है, जॉब इंजीनियरिंग है, ये सब जॉब रोटेशंस इसके अंदर आपको। देन देयर आर मेनी मॉडल्स ऑफ द चेंज, जैसे कॉट लुइन मॉडल है, देखो ये पढ़ना, ऑन फ्रीजिंग, मोमेंट्स एंड रिफ्रीजिंग। ठीक है, ऑन फ्रीजिंग के टाइम पे आप जितना एजुकेट कर सकते हो, पार्टिसिपेशन कर सकते हो, इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, फाइंडिंग विच वन इज गुड बैड, है ना, सब चीजें। देन if they are agree, then you have to move to the next level, then you permanently refreeze। refreezing means permanent हो जाएगा वो, और normal old behavior जो है now convert into the new behavior and become the old behavior, ये परमानेंट चेंज हो जाएगी, रिफ्रेजिंग। इसी तरह कॉटर्स 8 स्टेप, जेपी जॉन पी कॉटर्स गिवन 8 स्टेप मॉडल्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था ना, सेंस ऑफ अर्जेंसी, पहला कौन सा चीज है उसको पहले काम करना है। ठीक है, कोरिलेशंस, पहले पावर को यूज करना है, फॉर्म में कोरिलेशंस, है ना, ग्रुप, उसको यूज करनी है। देन विजन, ठीक है, व्हाट आर द थ्री थिंग्स इज ए न्यू विजन टू चेंज। ठीक है, जो नया टारगेट है, गोल है, उसके ऊपर काम। देन कम्युनिकेट विजन टू द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, देन एम्पावर पीपल्स, आपको एम्पावर करना। देन प्लान फॉर क्रिएट एंड रिवार्ड सिस्टम, रिवार्ड देनी है। देन इम्प्रूव द जो जहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं, कंसोलिडेटेड इम्प्रूव फॉर चेंजेस। ठीक है, देन रेनफोर्स देम, ठीक है, उनको रेनफोर्समेंट है। तो ये हो गया आपकी 8 स्टेप जो है उनको फॉलो करिए। देन 6 बॉक्स मॉडल मैंने अभी बताया था, ये चीजें ये अगेन रिपीटेशन है। ठीक है, देन ग्रीनर्स जो है मॉडल यहाँ पे दे रखा है, ग्रीनर की मॉडल। इन्होंने कहा ग्रोथ थ्रू क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी, ग्रोथ एंड इनोवेशन जितना होगा उतना अच्छा है, लोगों की फायदा है। ग्रोथ थ्रू डायरेक्शंस, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, डेलीगेशंस, कोऑर्डिनेशंस एंड कोलैबोरेशंस। ठीक है, तो ये मॉडल जो है किसने दिया, ग्रीनर्स। ठीक है, तो ग्रीनर्स की जो मॉडल है, तो ये ग्रोथ पहले फोकस करिए, जो क्रिएटिविटी, कोई भी काम में क्वालिटी एंड क्रिएटिविटी होना चाहिए। देन डायरेक्शंस, प्रॉपर डायरेक्शंस होनी चाहिए, डेलीगेशंस, कोऑर्डिनेशंस कम, है ना, ये चीजें होनी चाहिए, कोलैबोरेशंस। देन इसके बाद कमिंग अर्ली मॉडल्स लाइक मोटिवेटिंग चेंजेस। ठीक है, बहुत सारे मोटिवेटिंग चेंजेस, क्रिएटिंग विजन्स, राइट, डेवलपिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, मोटिवेट करना है, क्रिएटिंग विजन, पॉलिटिकल सपोर्ट, मैनेजिंग द ट्रांजिशंस, जो ट्रांजिशंस है, प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटी आ रही है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, एंड सस्टेनिंग मोमेंटम्स इन द, तो जो मोमेंटम है उसको बनाना है। इसी तरह ब्रुक लुइन मॉडल्स ऑफ द चेंज, अलग अलग मॉडल्स हैं। तो ये कह रहा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखिए, मिशन, विजन, स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, देखो यहाँ पे लीडरशिप की बात कर रहा था, कल्चर की बात कर रही, स्ट्रक्चर, सिस्टम, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, वर्क इन क्लाइमेट, टास्क एंड स्किल्स। ठीक है, फोकस करिए टास्क और स्किल्स कैसे इंप्रूव हो। फिर इंडिविजुअल वैल्यू एंड नीड, मोटिवेशनल लेवल क्या है, ओवरऑल होगा। ये तो बहुत अप्रोप्रिएट मॉडल है, मुझे लगता है इसको आपको फोकस करना है जो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, देन जॉन फिशर चेंज की मॉडल्स हैं, या आप ये देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस में। इन्होंने जॉन फिशर से एम्प्लॉय ऑपरेट्स द मल्टीट्यूड ऑफ द एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉन फिशर इज टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉय सेल्फ परसेप्शन लोकस, मतलब ये फोकसिंग ऑन द पर्सनालिटी एस्पेक्ट, परसेप्शन एस्पेक्ट। ठीक है, और उसी ट्रांजिशंस को अगर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर्स, हम एंजाइटी, ये सब गिल्टी, डिप्रेशन, हॉस्टिलिटी, ये सब एम्प्लॉय फोकस है, अगर फ्रस्ट्रेटेड है, एंजाइटी है, हैप्पीनेस है, तो ये सब चीजें मोटिवेशंस वगैरह आएगा। ठीक है, नाउ
4th unit, program evaluation process in organization development. तो इसमें इवैल्यूएट नाउ फर्दर जो हमने डेवलपमेंट चेंजेस किया उसका आउटकम क्या है उसकी इवैल्यूएशन करनी। तो इवैल्यूएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं इवैल्यूएशंस की, और इवैल्यूएशन इज ए वेरी साइंटिफिक, जो भी आपने किया उसका रिटर्न क्या है, आउटकम क्या है। तो इवैल्यूएशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, देयर आर डिफरेंट टाइप, फॉर्मेटिव, इम्प्लीमेंटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव। समेटिव, तो इसमें आउटकम और प्रोसेस, हमें इवैल्यूएशन की दो पार्ट है, प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड आउटकम इवैल्यूएशन। तो उसी तरह हमें पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, स्टेजेस प्रोग्राम लाइक नीड प्लानिंग क्यों है, कलेक्ट डेटा, फाइनलाइज द रिपोर्ट्स, इस तरह की करनी। मॉडल्स की अगर बात करें, ये डोनाल्ड पैट्रिक मॉडल्स ये बहुत बड़ा पॉपुलर है, जिसमें पहले रिएक्शन मेजर किया जाता है। जो भी आपने डेवलपमेंट चेंजेस किया, इनिशियली हैप्पी है, हैप्पी सीड्स, जिसको इनिशियल रिएक्शंस क्या रही, ठीक है, लर्निंग क्या हुई, बिहेवियर क्या है, रिजल्ट क्या है, ठीक है, वो सारे। देन जैक फिलिक्स आरओआई मॉडल है ना, इन्होंने कहा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इसके साथ रिएक्शन प्लानिंग है, लर्निंग, जॉब एप्लीकेशन, बिजनेस, देन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिजनेस आरओआई क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने खर्चा किया उसका investment। तो ये सब मॉडल है तरह तरह की इवैल्यूएशन। देन सिप मॉडल, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। तो इसको भी यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमने कितना हुआ इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस है, प्रोडक्ट आउटकम क्या है, ठीक है। तो ये मॉडल को भी आप सिप मॉडल कर सकते हो। देन कुकमैन मॉडल, 5 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन। कुकमैन में इनपुट, प्रोसेस, एक्विजिशन, एप्लीकेशन, आउटकम, आउटपुट एंड आउटकम। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। CIRO जैसे ये हो गया, कंटेंट, इनपुट, रिएक्शंस, आउटकम। तो सबकी वही है बात लगभग। अगर आप एक ही मॉडल याद करना, डिफरेंट मॉडल कैन बी कम इन द एग्जाम, बट ये सारे पॉपुलर है जो डोनाल्ड पैट्रिक मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट्स। Okay. तो दीज आर द एस्पेक्ट्स इन चेंज डेवलपमेंट। एक तो मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इवैल्यूएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, जो इवैल्यूएशन मॉडल्स मैंने बताया था, और चेंज की डेवलपमेंट की मॉडल्स, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। तो कोई और एनी अदर डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ और डाउट है, कुछ पूछना है? और कल शायद फिजिकल क्लास है, कोई डाउट है पढ़ के आ जाइए, ठीक है, कल आके बात कर सकते हैं। बताइए दीपा, यस सर। बताइए कोई डाउट है, कुछ है पूछना है? सर क्लियर है। परमदीप और